होता है ख्याति प्रसिद्धि, कितना फेमस है आपका प्रोडक्शन यूनिट या आपका एंटरप्राइज बिजनेस का, तो उसे ही हम इनटेंजिबल एसेट्स, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, आपने कुछ पेटेंट करवा लिया कि और कोई नहीं इसको इससे इसकी सहायता से व्यवसाय कर सकता है, तो ये सारी संपत्तियां जो होता है वो रियल अकाउंट की कैटेगरी में इनटेंजिबल एसेट्स के रूप में दर्ज है। नाउ कम सेकंड, नॉमिनल अकाउंट। इन नॉमिनल अकाउंट all the expenses and liabilities of the firm just having their existence in nominal account. Suppose that capital invested by the owner, जो पूंजी लगाया, debt, liabilities, expenses incurred, income received, these are the part of the nominal account. मेरे कहने का मतलब ये है कि जो खर्चे होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के, उसके ऑपरेशन में, व्यवसाय के, बिजनेस एंटरप्राइज के चलाने में, व्यवसाय को इस्टेब्लिश करने में, वो सारे खर्चे आपके नॉमिनल अकाउंट की श्रेणी में आते हैं। जो लायबिलिटीज होती हैं, जो कैपिटल ओनर ने इन्वेस्ट किया है, वो भी नॉमिनल अकाउंट का कैटेगरी होता है। बिकॉज ऑफ दैट, अकॉर्डिंग टू द एजम्पशन ऑफ अकाउंटिंग, द बिजनेस एंड द ओनर ऑफ द बिजनेस इज सेपरेटेड, दोनों अलग अलग हैं। तो जो पूंजी बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है वो फर्म के लिए लायबिलिटीज हो जाती है, इस वजह से वो नॉमिनल अकाउंट। इनकम कोई रिसीव किया आपने, प्रॉफिट कमाया या लॉस हुआ, ये सारे जो होते हैं आपके इस कैटेगरी में आते हैं, नॉमिनल की कैटेगरी। Now next one, stages you know, original record. First, all the transactions are recorded, day-to-day transactions are recorded, that is the primary stage of recording, journal and subsidiaries book. Second stage, classification. After classifying from the primary book or subsidiaries book, such transactions are posted in ledger, that is called the classification of the transactions. And third stage, summary. Summary refers all the transactions recorded by opening the account just at one place, they are posted, that is called the summarization. It is called in ledger, and with the help of ledger we can prepare the trial balance. All the balances just taken into consideration for preparing the trial balance. जो भी होता है पहले ओरिजिनल रिकॉर्ड करते हैं, रोजनामचे में कर लिए, उसके बाद उसका वर्गीकरण करने के बाद उसकी समरी बनाई जाती है, और समरी बनाने के बाद हम ट्रायल बैलेंस, और ट्रायल बैलेंस से फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर। एडवांटेजेस क्या है? जो पहला एडवांटेज है बेटा, साइंटिफिक रूल्स है इसका, डबल एंट्री सिस्टम, बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन सम सर्टेन रूल्स एंड रेगुलेशंस, सो साइंटिफिक रूल। सेकेंड वन, कंप्लीट रिकॉर्ड। Advantage means all the transactions completely recorded
in double entry system. Third, preparation of trial balance, and with the help of this system we can prepare the trial balance easily, and with the help of trial balance we can prepare the financial statement. Each and every transactions are recorded in the books of original entry. And after the trial balance we can prepare the financial statement. So in financial statement, with the help of trial balance we can prepare the profit and loss account to know the exact financial परफॉर्मेंस ऑफ द बिजनेस. इसके द्वारा ये एडवांटेजेस हैं डबल एंट्री सिस्टम के, ये लाभ हैं, ये उसके महत्व हैं कि हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन को, ऑर्गेनाइजेशन के पोजीशन को, उसके आर्थिक प्रदर्शन को बखूबी जान सकें. नेक्स्ट, नॉलेज ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन. By preparing the balance sheet, we can ascertain the financial or strength of the financial position or strength of the business enterprise. बैलेंस शीट के द्वारा हमारे पास कितनी संपत्तियां हैं, कितना दायित्व है, ये सब कुछ और कितना हमने लाभ कमाया, हम अपने आर्थिक प्रदर्शन और आर्थिक ढांचे को जान सकते. And various information, knowledge of various information with the accounting information system, management and the owner, the stakeholder can know the exact information for making the future plan, for taking decision or creation of budget of the business organization, such things. It is legal approval, कानूनी वैधता भी प्राप्त है इसको. It helps the auditor and so on. Many advantages of double entry system. Now we can come to the main point of the disadvantage. आप ये पूछेंगे सर इसके विषय में तो सब बता दिया, लाभ भी बता दिया, क्या क्या है, और इसका कुछ तो लिमिटेशन होगा, कुछ तो इसमें मिस्टेक होगा, तो वो मैं बता रहा हूँ. डिसएडवांटेजेस मीन्स फर्स्ट, एरर्स ऑफ ओमिशंस. एरर्स ऑफ ओमिशन, omitted. I mean to say, this one is the clerical job, the recorder, bookkeeper. To err is human. भूल सबसे हो सकती है. तो पहला भूल ये है, कोई ट्रांजैक्शन जो है रिकॉर्ड करने से छूट भी सकता है. ऐसी दशा में एग्जैक्ट फाइनेंशियल परफॉर्मेंस या तो कम होगा या तो बढ़ेगा. दूसरा, एरर्स ऑफ कमीशन. जैसा कि एज इट हैज बीन एक्सप्लेन्ड, ये बताया जा चुका है कि भाई टू आर इज ह्यूमन, गलतियां मनुष्य से भी होती हैं. तो एरर्स ऑफ कमीशन का मतलब होता है रॉन्ग अमाउंट रिकॉर्डेड. ऐसा हो सकता है कि भाई 5,000 के जगह 500 लिख दिया, 500 के जगह 5,000 लिख दिया. तो ऐसी भी गलतियां होती हैं. एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स, सैद्धांतिक गलतियां. सपोज दैट वी आर, फॉर एग्जाम्पल, we have purchased a machinery for the business entity. हमने एक मशीनरी खरीदा व्यवसाय के लिए,
और उसे हम परचेज अकाउंट में डाल दिए। तो इस तरह की भी गलतियां हो सकती हैं। कंपनसेटिंग एरर्स, ऐसी भी गलतियां हो सकती हैं। वन साइडेड रिकॉर्डेड करेक्ट अमाउंट एंड अदर साइडेड रिकॉर्डेड रॉन्ग अमाउंट। इट कैन अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस and with the help of trial balance we can prepare the financial statement. So this one is the double entry system, my dear. A little bit of focus given to you in detail. Observe the video, going through the book you can understand the fact. Thank you very much.